हेलो। जी जी आ रही है आवाज। वर्ब गिव yes give away बांटना sentence the principal gave away the prize. Give away is the phrasal verb. Now next give back लौटाना she never gives books back. Gives back लौटाना give back. Now give in समर्पण करना. At last the enemy gave in. Okay, give in समर्पण करना. Give out ऐलान करना. They give out the names of the winners. Give out important word ऐलान करना. Give over स्वीकारना. The viceroy gave over the charge of his office. Give over स्वीकार करना. Give up छोड़ना त्याग करना. He gave up cigarette. Give up. Give way रास्ता छोड़ देना. The mob gave way when the police let off their gas. Now give way या give way रास्ता छोड़ देना. Go ahead लगातार कार्य करना. Go ahead with patience. You will get success. Go ahead. Now go back on वायदे से मुकरना. Go back on. Go back on. You can't go back on your promise. Now go by जांच लेना. You should not go by appearance. Go by. Go down कम होना. The prices of sugar has gone down. Go down कम होना. Go far के लिए जाना. I am going for a walk. Going for phrasal verb. Go into बारीकी से जांचना. The police are going into the matter. Going into. Go off छूटना. The gun went off. Went off. Go off छूटना. जारी रखना. Go on. Go on with your work. Go on जारी रखना. Go through बारीकी से जांचना. He went through this book. Go up महंगा होना. The prices have gone up in the market. Gone up. Now next grow. Grow up विकसित होना. The baby is growing up fast. Hand over सौंपना. Ram handed over the charge to me. Hold back छुपाना. He held back the sad news. Hold back छुपाना. Hold by पकड़ना. I held him by the coat. Held by पकड़ना. Hold on प्रतीक्षा करना. Please hold on. He is coming. Hold on. Now next hold out प्रस्तुत करना. Don't hold out false promises to anyone. Hold out. Next hold over स्थगित करना. For want of quorum, the meeting was held over for some other day. Held over. Yes, held over. Next word. For want of quorum, the meeting was held over for some other day. Next, hold up. उठाना. He held up his hand. Held up. Hold with. पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना. The police has been accused of holding with one party. Now next, keep. Keep back. छिपाना, न बताना.
She kept back this secret from me. Kept back. Keep down. काबू करना. What is the best way to keep down rats? Keep down. Keep off. दूर रहना. Keep off the Congress Congress grass. दूर रहना. Now keep on. Zari rakhna. The teacher kept on talking in the class. Kept on. Keep out. दूर रहना. You should keep yourself out from bad habits. Keep out. Next, keep to. कहे अनुसार कार्य करना. You must keep to your word. You must keep to your words. Keep up. स्थायी रखना. The son kept up the reputation of his father. Kept up. Now last, keep up with. Most important. Keep up with. साथ पकड़ना. He walked so fast that I could not keep up with him. Okay. Now do you have any problem? Then we discuss here. Yes. Thank you. Thank you very much. Just wait. I'm going to share my screen. जी, हमारी आवाज मिल रही है? स्क्रीन क्लियर है? कहाँ तक पढ़ चुके थे हिस्ट्री भाई हम लोग? साउंड आ रही है। हाँ, थोड़ी देर साउंड आएगी क्योंकि बैकग्राउंड में भी क्लास चल रही है। अभी 15 मिनट में क्लास जो ओवर हो जाएगी। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ क्लास चल रही है एक, ठीक है? अभी 15 मिनट के बाद शांति मिल सकती है। थोड़ा एडजस्ट करें, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं। मेरी आवाज सुन सकते हैं आप लोग? यस सर। चलिए, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? न्यू क्लासिकल चल रहा था ना जी? बताइए भाई सुन लो। अच्छा, ये भी जो है हम लोग राइटर देख ये वाला हाँ है ना, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वाला लिटरेरी हाँ डिवाइसेस। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, ये हम लोगों को आज पढ़ना है। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? न्यू क्लासिकल एज पढ़ा था, और न्यू क्लासिकल एज में जो है उसके तीनों
जो पार्ट बांट के पढ़े जाते हैं, रेस्टोरेशन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी ये देखी थी, हिस्टोरिक बैकग्राउंड देख लिया था, इम्पोर्टेंट रूलर देख लिया था, चार्ल्स फर्स्ट से लेकर के कहाँ तक है, एडवर्ड गिबन तक। क्रिस्टोफर स्मार्ट, नो, ये राइटर थे। लास्ट हिस्टोरियन था इनका जॉर्ज का। फिर नोटेबल राइटर्स हमने देखे थे, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पोप, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, जोसेफ डेनियल डेफो और लास्ट के थे हमारे क्रिस्टोफर स्मार्ट। आज हम पढ़ेंगे कि इस पूरे जो न्यू क्लासिकल एरा है, उस एरा, न्यू क्लासिकल एरा मतलब जो तीनों एजेस हैं इनको मिलाकर 1660 से लेके 1784 तक के बीच का ये एनालिसिस और उसके राइटर्स और फीचर्स दिए हुए हैं। हालांकि अभी इसके आगे जो है हम इनको अलग अलग भी पढ़ेंगे, इन तीनों एजेस को अलग अलग भी पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन से लिटरेरी फीचर रहे हैं, लिटरेरी फिगर क्या क्या रहे हैं और उनके प्रोमिनेंट राइटर कौन से रहे हैं, उनके वर्क कौन कौन से, हम अलग से भी पढ़ेंगे। लेकिन अब जब पूरे न्यू क्लासिकल की बात करते हैं तब ये इतने किंग्स और इतने जो है राइटर्स और अब इसी जो पूरा एरा है उसमें कौन कौन सी ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस यूज करी गई, उनमें जो है न्यू क्लासिकल कंसीट, जैसे अभी आपने मेटाफिजिकल कंसीट और कंसीट ऐसा पढ़ी है, तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लिसिटी जो है बना दी गई कंसीट में, जो कि समझ ले लगे। वैसे तो कंसीट एक कॉम्प्लेक्स आइडिया होते ही है, तो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं समझ पाता है। यहाँ पर जो है जो मेटाफर टाइप में चीजें यूज करी जा रही थी राइटर्स के द्वारा, उसी को जो है न्यू क्लासिकल कंसीट कहा जाने लगा। या यूं कह सकते हैं कंसीट आप पहले तो जानते हैं जब दो डिसिमिलर चीजें, मेटाफिजिकल कंसीट वो चीजें हो गई ज्यादा बिल्टी हो जाए। न्यू क्लासिकल एरा में प्रयोग की जाने वाली राइटिंग में जो कंसीट होती थी वो न्यू क्लासिकल कंसीट हो गई, जैसे अलेक्जेंडर पोप लाख में प्रयोग करें। आगे पैरालिज्म, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फ्रेश आइडिया क्रिएट द बैलेंस ऑफ द हार्मनी। एक स्ट्रक्चर ग्रामर का ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर एक प्रकार से कह सकते हैं, जो राइटर्स और पोइट्स होते हैं इनको पोएटिक लाइसेंस होता है, अपने हिसाब से भी चीजों को स्ट्रक्चर बना करके यूज कर सकते हैं, उन्हीं को जो पैरालिज्म कहा जाता है। इनको जो है हम डिटेल में कंसर्ट जो है वहां पर पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म्स एंड एलिमेंट्स में जहाँ पढ़ेंगे। आगे हम देख लेते हैं डेकोरम, प्रिंसिपल ऑफ appropriations of the adherence to the established rules of the social norms। सामाजिक चीजें जब चीजें ज्यादा उस समय की जो प्रेस्क्राइब्ड रूलिंग थी या फिर जो है प्रेस्क्राइब्ड जो कुछ कस्टम्स थे उसके आधार पर जब चीजें लिटरेचर में डिपिक्ट करी जा रही थी उसे डेकोरम के नाम से जाना गया। अब हम इस न्यू क्लासिकल का एक यूनिवर्सली पढ़ने के बाद हम ग्लोबली पढ़ लिए हैं, अब उसके बाद न्यू क्लासिकल की जो 3 एजेस हैं, रेस्टोरेशन एज उसमें सबसे पहली आती है और कब से कब तक के है 1660 से 1700 तक के मानी जाती है। इसके बाद एज ऑफ और सेंसिबिलिटी। तो अभी सबसे पहले हम जो है रेस्टोरेशन एज, जिसे हम एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। ये है हमारी रेस्टोरेशन पीरियड, एज ऑफ ड्राइडन, किस कहाँ से कहाँ तक 1660 से 1700 तक के, इस बीच के पीरियड को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर द रेनेसां पीरियड द न्यू क्लासिकल पीरियड बिगिन फर्स्ट विद द रेस्टोरेशन पीरियड। इट इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ ड्राइडन। स्क्रीन विजिबल है सभी को जी? यस सर। सुन रहे हैं? चलिए, थैंक यू। यस सर, यस सर। Thank you. It was literally the dictator of the period and it was the between 1660 and 700। एक ही देने वाली बात है कि ये जो टर्म यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए है? ड्राइडन के लिए जनरली यूज किया जाता है, लेकिन जो है ये आप पूरी एज के लिए भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पूरे एरा में जो है किसके डिक्टेटर एज के नाम से जाना जाता है तो एज ऑफ ड्राइडन मतलब जो है रेस्टोरेशन एज होगी। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द, क्या चीजें महत्वपूर्ण रही हैं इस एज में हिस्टोरिक दृष्टि से? ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड
इंग्लैंड एक्सपीरियंस द सिग्निफिकेंट कल्चर, आर्टिस्टिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। कैसे कैसे चेंजेस आ रहे थे, कल्चरल आ रहे थे, आर्टिस्टिक थे और पॉलिटिकल थे। इट वाज द टाइम ऑफ रिलेटिवली पॉलिटिकली स्टेबिलिटी। इसमें जो है पॉलिटिकली स्टेबिलिटी दिखाई गई है, इकोनॉमिकली ग्रोथ इसमें होती है और साइंटिफिक जो है चीजें इसमें होती हैं और एडवांसमेंट भी इसका एक फीचर रहता है। ये इसलिए चीजें ज्यादा जरूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड की, तो रेस्टोरेशन पीरियड से कोई मतलब एक न क्वेश्चन कोई ना कोई एक जरूर बनना माना जाता है कि किसी भी एग्जाम में एक यहाँ से हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ से बन सकता है। तो उसके लिटरेरी फीचर और हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो वहां आपको ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। अगर सीधे ऐसे पूछ लिया गया कि भैया रेस्टोरेशन एज कब से कब तक के है, आपने 7 से 1700 तक मार दिया, विकल्प में है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर थोड़ा फीचर से बना दिया कि दिस रिफर टू डैश करके कर दिया, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, साइंटिफिक एडवांसमेंट, ये सारी चीजें कर दिया, तो फिर अगर ये चीजें जानते नहीं तो फिर इस तरह के क्वेश्चन करना आसान नहीं होगा। जस्ट वेट। जी, आर्ट स्टोरी विद द रिपोर्टिंग ऑफ द थिएटर्स। इसमें जो है थिएटर्स का काफी जो है मतलब प्रभाव दिखने लगा। द रेस्टोरेशन ऑफ द पब्लिक परफॉर्मेंस। अच्छा, इसके पहले जो एज हम लोगों ने पढ़ी प्यूरिटन इंटरगनम, तो उसको जो है हम लोगों ने कॉमनवेल्थ के पीरियड से भी जान रहे थे, प्यूरिटन इंटरगनम के नाम से भी जाने। अच्छा, उसको जो है एक डेमोक्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उसे जो है डेमोक्रेटिक पीरियड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेटिक पीरियड किसको कहा जाता है, अगर ये पूछ ले तो डेमोक्रेटिक पीरियड जो है वो ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में जो शासन चला था 49 से लेकर के 60 तक के, उसके बीच को जो है डेमोक्रेटिक पीरियड उसे जो है माना जाता है। तो ये आप उस पीरियड में ऐड कर लीजिएगा, चीज शायद हम बता नहीं पाए थे, भूल गए होंगे जी। आगे अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, द रेस्टोरेशन ऑफ द पब्लिक परफॉर्मेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रामेटिक जनरा सच एज रेस्टोरेशन कॉमेडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2021 में क्वेश्चन बना, इसके पहले भी क्वेश्चन बना है, और एलटी और जीआईसी, सॉरी एलटी तो भी एक ही पेपर हुआ, जीआईसी का पेपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको ज्वाइंट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रेस्टोरेशन कॉमेडी से। रेस्टोरेशन कॉमेडी द पीरियड आल्सो सादा। अभी रेस्टोरेशन कॉमेडी हम पढ़ेंगे आगे क्या चीज है, यही भी पढ़ लेंगे। वैसे तो लिटरेरी जनरल में हम पढ़ते ही पढ़ते वहां पर, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। द पीरियड आल्सो saw the emergence of the influential writers and thinkers, including John Dryden and Samuel Pepys, and John Locke। देखो ये अंग्रेजी राइटर है, और अंग्रेजी राइटर को हम हिंदी में याद किए हैं, याद पढ़ते हैं, तो अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन दूसरा निकलता हो तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। हमारा मतलब है कि वहां पर बैठ जाए और एग्जाम तक के वो पहुंच जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी वाज लैंडमार्क इन द हिस्टोरिक इवेंट। जो इसी पीरियड में जो है रॉयल सोसाइटी का गठन होता है, ये एक जो है इस पीरियड की महत्वपूर्ण हिस्टोरिक घटना मानी जाती है। जेम्स सेकंड असेंडेड द थ्रोन इन 1685। ये चीज बन जाती है कि देखो जो रेस्टोरेशन एज है वो शुरुआत किससे होती है, किससे शुरुआत होती है, किस किंग से, क्यों, चार्ल्स सेकंड से, 4 सेकंड से होती है। बट रेस्टोरेशन एज में जो अगर आप थ्रोन असेंटेशन की बात करें, सेकंड जो होता है वो जेम्स सेकंड का होता है, ये इनके 4 सेकंड के भाई होते हैं। इनका होता कब है, 1685 में। ही बिकेम द अनपॉपुलर विद इन 3 years। ये बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर नहीं रहते हैं, और नहीं रहने के पीछे रीजन भी यही होता है कि कुछ समय कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं। इनका एक बैड लक भी होता है कि उस टाइम जो है कॉन्फ्लिक्ट उस रेंज में इनके ज्यादा हो जाते हैं, और उसका रीजन एक ये भी होता है क्योंकि इनकी जो फेथ थी वो कैथोलिक थी। आगे देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ करप्शन, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मॉरलिटी कमी हो गई थी, और प्रीडोमिनेंट इन द सोशल लाइफ एंड द रेस्टोरेशन।
आर रिफ्लेक्टेड लिटरेचर एंड आर फॉलोइंग एज। मतलब जो उस समय की ज्यादातर घटनाएं हुआ करती थी उनका प्रभाव जो है सीधे सीधे लिटरेचर पर दिखने लगा था। और ये राजा जो साहब थे, राजा साहब, तो ये कैथोलिक होने के नाते जो है प्रोटेस्टेंट पे अपना प्रभाव डालने लगे और वहां पर ये ज्यादा शासन को संभाल नहीं पाए, इसलिए करप्शन, लैक्सिटी, मॉरल लैक्सिटी ज्यादा बढ़ गई और उसका प्रभाव देखते हैं लिटरेचर पे। किस प्रकार से प्रभावित करता है ये सारी चीजें लिटरेचर को? राइज ऑफ न्यू क्लासिकल, ये आपके टर्म्स हैं इस एज के, मतलब फीचर हैं, इनको जो है ध्यान में रखना चाहिए हमें। rise of neoclassical, imitation of the ancient masters, Latin writers add guidance and the inspiration, imitation of the French masters, literature, restoration literature is realistic, realism and formalism। इतनी चीजें जो है इनके पीरियड में या रेस्टोरेशन पीरियड में लिटरेचर में चीजें दिखने लगी थी। It was very much concerned with the life of London and with the detail of dress। यहां से भी क्वेश्चन एक बनता है क्या? ड्रेस, फैशन एंड मैनर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसी यहीं से क्रिएट हुआ तो उस समय बहुत फैशन दिखाया जाने लगा था लिटरेचर में। द अर्ली रेस्टोरेशन राइटर्स ऑब्जर्व, जैसे विलियम जेलॉन्ग, शॉर्ट पैंट, रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ करप्ट एंड कोर्ट एंड सोसाइटी, करप्शन की कोर्ट सोसाइटी को काफी उन्होंने डिपिक्ट किया जाता जाने लगा। एम्फेसिस दैट्स बेटर देन वर्च्यू, वर्च्यू की अपेक्षा जो है वर्चस को जो है रिफर किया गया। गिव आवर कोर्सेस लो प्लेस विदाउट द इंटरेस्ट एंड मॉरल सिग्निफिकेंस, द पोएट्री ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज फॉर्मल, इंटेलेक्चुअल एंड रियलिस्टिक। दो चीजें यहाँ पर मिल गई हमको। पहली चीज जो रेस्टोरेशन पीरियड था उसमें जो है राइटिंग में काफी ड्रेसेस, अच्छा पहनावा दिखाने जाने लगा। उस समय का फैशन और मैनर्स ज्यादा दिखाने जाने लगा। यही से जो है हमारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो कॉमेडीज लिखने का एक जनरा क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जो है मॉरलिटी और वर्चूज को कम और लेवलिटी को ज्यादा दिखाने जाने लगा। रेस्टोरेशन पीरियड की जो कॉमेडी थी, जो भी लव वर्क थे उस समय के, इंटेलेक्चुअल से काफी भरे हुए थे। बीटी डायलॉग जो है उस पीरियड के लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। वास्तविकता की भी बहुत सारी झलक उसमें देखने को मिलती है। द रेस्टोरेशन एरा अल्टीमेटली कम टू एन एंड विद द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। जो जेम्स सेकंड का रवैया था प्रोटेस्टेंट को लेकर के, वहां की राज सत्ता पे आते ही उन्होंने जो अपने प्रजा को लेकर के अपना एटीट्यूड दिखाया, उसको लेकर के वहां पर एक रिवोल्यूशन जो है, नोबल्स मैंस जो थे, जो लॉर्ड्स थे, जो वहां का बीटी वर्ग था, वो उनके अगेंस्ट होने लगा और पार्लियामेंट के उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, क्योंकि काफी रूल्स ऐसे थे जो पार्लियामेंट पसंद नहीं करती थी और उसका परिणाम निकला ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन प्राप्त होती है 1688। हालांकि इसके पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं शुरुआत में ही, तो ये टाइम भी ध्यान रखने वाला है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये पूछी जाती है। When William of Orange and his wife Mary, daughter of King James II, were invited assume the throne, leading the establishment of the constitutional monarchy and the pursuing the Bill of Rights। दो चीजें यहाँ से समझ में आई। एक तो जो उनका बिहेव था उसकी वजह से ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गई, और ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती कब है? 1688 में होती है। और ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह से ही वहां के लोगों ने जेम्स सेकंड की लड़की को, मतलब पुत्री को, और उनके दामाद को, इसको विलियम ऑफ ऑरेंज को, और उनकी बेटी थी, क्या नाम था, मेरी, इनको जो है बुला लिया गया कि भैया आओ यहाँ पर शासन करो। और ये लोग जब इंग्लैंड में आते हैं तो एक जो है डेमोक्रेटिक चीजें लेकर के आते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट लेकर के आते हैं, एक प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें लेकर के आते हैं अपने इस रेन में। हालांकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये विलियम द ऑरेंज थे, विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी, जो इनका रेन था वो किसकी उत्पत्ति थी, तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन की उत्पत्ति थी। उसकी वजह से ही ये लोग थ्रोन पर वहां पर असेम्स हो पाए थे। अगला ये एक पॉइंट ये मिल सकता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सबसे पहले जो आए जो संवैधानिक डायनेस्टी का इन्होंने विकास किया। आपसे पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का स्थापना किसने किया था, तो मेरी और विलियम ने किया था, ध्यान रखिएगा। और राइट, बिल ऑफ द राइट्स, ये जो है 1689 में भी पूछा जाता है, ये भी इन्हीं के रेन में आया था।
हु आर द इम्पोर्टेंट रूलर्स। इस पीरियड के रूलर्स कौन कौन से थे, कब से कब तक के, 1660 से 1700 के बीच में। तो सबसे पहले शुरुआत ही किससे होती है, इनकी चार्ल्स सेकंड 1662 1685 तक के इनका रूल जो है इंग्लैंड पर रहता है। क्योंकि इंक्लूटर इंटरगनम के बाद जो है कॉमनवेल्थ के बाद सबसे पहले जो राजा बने चार्ल्स सेकंड ही बने। तो पहले तो यही हो गए, ये कब से कब तक रहे, 60 से 85 तक रहे। चार्ल्स आल्सो एज द मेरी monarch was the central figure of the restoration era. He became the king after the period republican rules. ये चीजें ध्यान रखिएगा, रिपब्लिकन रूल भी उससे कहते हैं। जो पीरियड कौन सा, जो छोड़ चुके हैं हम लोग इसके पहले भी, कॉमनवेल्थ वाले का, कॉमनवेल्थ, प्यूरिटन इंटरगनम, प्यूरिटन और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, ये सारी चीजें इसके अंदर में रूलिंग पे चल रही थी ओलिवर क्रॉमवेल के। तो ये सारे नाम अगर, हाँ हाँ जी, हाँ जी, अगर ये सारी चीजें नाम कहीं मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने ढेर सारे नाम कहाँ से आ गए। ये सारे के सारे वहीं से निकल करके आए हैं, क्योंकि वहीं से जो है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है उसमें पॉलिटिक्स में, ये सबसे पहले किस एरा से आती है, तो भी यही होगा, और उसका क्रेडिट जो है ओलिवर क्रॉमवेल को ही जाता है उस समय के। अगला देखते हैं, He led the witness of the reporting of the theaters सारे ओपन हो गए थे, रिवाइवल ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट, मॉरल रिलैक्सेशन, सोशल एटमॉस्फेयर आ गया था। However, his reign was also marked by जी, am I audible? Screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, his witness reporting theaters, the revival of entertainment, moral. However, his reign was also marked by the political challenges such as conflict with parliament and religious tensions. ये सब चार्ल्स सेकंड से ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो है ये जेम्स सेकंड पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जाके परिवर्तित हो गई। जेम्स सेकंड जो इनके भाई हैं, जेम्स सेकंड 1685 to 1688 with the glorious revolution. James II, the younger brother of the Charles II, succeeded him to the throne. His reign was the relatively short and contentious. बहुत छोटा था और द्वार विवादित रहा। जेम्स सेकंड Catholicism and his attempt to increase the Catholic influence in England alarmed many Protestant English politicians and nobles. उनका जो कैथोलिक को लेकर के फेथ थी उसको लागू करना चाह रहे थे इंग्लैंड पे। परिणाम ये इसका हुआ कि इंग्लैंड में जो है कई जो प्रोटेस्टेंट थे वो इसके भी विरोध में आ गए और पॉलिटिशियंस आ गए, और जो अरिस्टोक्रेट थे, नोबल्स थे, वो भी जो है इनके विरोध में हो गए। टू लेट द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट ओवरथ्रोन, परिणाम ये निकला कि उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। विलियम थर्ड एंड मैरी सेकंड, जो कि जेम्स के बाद आते हैं, जेम्स की लड़की होती है। फॉलोइंग इनका जो पीरियड माना जाता है 1689 to 1694। Following the Glorious Revolution, William appointed, who was married to James II's Protestant daughters, ये भी ध्यान रखिएगा कि daughter Protestant थी, was invited to assume the throne jointly with Mary. William III and Mary II ruled as so co-monarchs established the constitutional monarchy. Constitutional monarchy बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम थर्ड या विलियम ऑफ ऑरेंज and Mary II in England. Their reign was जी सर ये समझ में नहीं आया कि इसके जो फादर थे जेम्स सेकंड वो कैथोलिक थे और इनकी बेटी जो मैरी है उसके फिर विलियम जो ऑरेंज थे उसकी तरफ से ये प्रोटेस्टेंट हुई ना फिर। हाँ, नहीं, ये जो है जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक विचारधारा है, कोई वहां की जाति नहीं थी।
हाँ, तो नहीं, वो विचार में जो है कैथोलिक ऐसे थे प्रोटेस्टेंट जो थे। चर्च के पादरी लोग जो थे, जो चर्च को ज्यादा मान्यता देते वो कैथोलिक थे। प्रोटेस्टेंट थे वो कि जो इस आडंबर के विरोध में थे, वो प्रोटेस्टेंट थे। बहुत सही, बहुत तो सही। तो बस जो वही इसके है। फादर थे, तो वो तो कैथोलिक हो गए। दैट्स मीन्स वो चर्च के तरफ से अनुयायी हो गए ना, उस तरफ के। तो सपोर्टर थे, इसकी चर्च के बेटी, सपोर्टर थे। हाँ हाँ, तो इनकी बेटी फिर प्रोटेस्टेंट कैसे हुई? तो फिर ऐसे हुई जैसे क्यों कि नहीं हो गए? इसके जो हस्बैंड है हाँ हाँ, विलियम हो गए। ऑफ ऑरेंज, वो सब वो प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट हाँ, थे। प्रोटेस्टेंट। ओके, हाँ हाँ, वो प्रोटेस्टेंट। ठीक है। और नेक्स्ट जो इनके नाम है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स किस डेट में आता है? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा 1689 फ्रेंच 1689। रिवॉल्यूशन से 1 सेंचुरी पहले। हाँ हाँ, जी जी। These three monarchs played a crucial role in shaping the Restoration period, with Charles II's rule representing the restoration of the monarchy. James II, marked by religious and political tension, William III and Mary II reign in initiating the shift toward the constitutional monarchy. तो ये तो रहे जो 4 सेकंड के बाद ये राजा 2 और तो टोटल मिला के 3 रेंज ये। अगला है हु आर द नोटेबल राइटर्स एंड देयर वर्क ऑफ दिस एज। तो आज के सेगमेंट में इतना ही पढ़ा जाए, इसलिए में और भी चीजें कवर करनी है। और हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट पे पढ़ेंगे वो इसके राइटर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पोइट्री का पढ़ेंगे, पोइट्री और प्रोज दोनों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो लिटरेरी जेमरा होते हैं, जैसे रेस्टोरेशन कॉमेडी में जैसे क्या बोलते हैं इसको, अपर क्लास को कॉन्ग्रू का एक अपर जी क्लास जी को जी, वो क्या किया करेंगे? गया है ना, इसमें अटैक किया गया है, अपर कॉमेडी क्लास को जो है सटायर सटायर है, सटायर किया गया है, है ना? सटायर किया गया है। जी तो जी। ये सारी चीजें जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये एज जो है पूरी जो रेस्टोरेशन है, काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आगे आने वाले 1-2 सेशन जो होने वाले हैं हमारे वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो वी कंटिन्यू। तो अभी आज का सेशन जो है हम यही तक के रखते हैं। अगला हम सेशन ग्रामर का लेके आ रहे हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 1 मिनट और 2 मिनट। काइंडली वेट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी, am I audible? आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए फिर पढ़ते हैं, हम लोग ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। ग्रामर पे हम लोग जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे थे, और उसमें जो है हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग डील कर रहे थे। कुछ सेंटेंसेस कल हम लोगों ने कर लिए थे, आज जो है उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
इसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जा रहा है, ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे भी मिल जा रहा है, और तैयारी जोन के पोर्टल पे भी डेली वीडियो अपलोड अपडेट हो जाता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप पे तो मिल ही जाता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप लोग जितने भी साथी रेगुलर जुड़ रहे हैं, 1% भी क्या आपकी पढ़ाई में या आपकी तैयारी में यहाँ से कुछ हेल्प मिल पा रही है, या ऐसे एंटरटेनमेंट में जुड़ जाते हैं आप? क्यों? नहीं सर, हेल्प तो मिल रही है, डेफिनेटली मिल रही है, रिकॉल हो रही है वो सारी चीजें पीछे जो पढ़ी हैं। तो ऐसा कतई तात्पर्य नहीं है कि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, यहाँ पर हम से पढ़ रहे हैं, पता नहीं है कुछ, पता आपको बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लगातार बने रहने से ये होगा कि कुछ चीजें हो सकता है फैक्ट आपको अलग से मिल जाए, बाकी जो चीज आप पढ़े हुई हैं वो चीज रिकॉल हो जाएगी। और एग्जाम जो है, प्रोबेबिलिटी ये है कि लगभग जुलाई तक के जाए मैटर ये। 2021 का पेपर जुलाई में हुआ था ना, और ऐसा ही संभावना बन रही है कि 2024 के जुलाई या अगस्त में पेपर हो। इसके पहले तो बहुत कम ही उम्मीद है, हालांकि कुछ भी फोरटेल नहीं कर रहा हूं मैं, न सरकार की नीतियों के विषय में जानकारी है इतनी, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो टाइमिंग है वो जुलाई या अगस्त तक ही जा रही, क्योंकि अप्रैल मई तक के तो एग्जाम, सॉरी, जो इलेक्शन आ रहे हैं, मई जून, जून जो है आपका मिल रहा है बीच में, तो जून में तो संभव नहीं है कि जो ही एग्जाम उससे इलेक्शन से छुट्टी मिले गवर्नमेंट को, तुरंत जो है एग्जाम करा दे। हालांकि जो है आयोग फरवरी या मार्च तक के तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम जो है नोटिफिकेशन जून में देखने को मिल सकता है, जो कि परिस्थितियां इस तक के अभी जो है हम लोग हैं फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सीधे सीधे 4 महीने अपने पास है, और 4 महीने तक के किसी भी कोचिंग से जुड़े हुए हों, आप 5,000 6,000 दे के पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, लगातार वहां तक 5,000 रुपए में आपको पढ़ाया जाना संभव है नहीं, वो पढ़ाएंगे नहीं, और बार बार आप उसी बैच को ज्वाइन करो, ये आप भी नहीं, दिमाग का आपका अलाउ करेगा कि वही नोट्स हम पढ़ चुके हैं वही से फिर से पढ़े, वही डाटा वही क्लासेस। तो आपको अगर सेल्फ स्टडी भी करना है तो चीजों को वहां तक अपने आप को मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती है। तो हम ऐसे ही साथियों की सर्च में हैं कि वो सारे लोग जो कोचिंग कहीं पर पढ़ चुके हैं, उनका नॉलेज मेंटेन है, बढ़िया है, लेकिन उसको एग्जाम तक ले जाने के लिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर 1% आप लोगों को यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मैडम के द्वारा की गई एक्टिविटीज, हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज, आपको 1% अगर बेनिफिशियल लग रही है, तो उसके बदले में थोड़ा इतना जरूर कर दिया करिए कि 2-3 लोगों को बता दो कि जो संख्या यहाँ पर दिख रही है आज की डेट में, ये संख्या बढ़ जाए। अगर ये संख्या बढ़ जाएगी तो हमारा साथियों का, हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा। अगर मनोबल बढ़ा के कुछ हमसे लेना चाहते हो तो फिर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, वरना एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बहुत ज्यादा दिन तक के चल नहीं पाएगी, रीइंफोर्समेंट मिलेगा नहीं, पुनर्बलन मिलेगा नहीं, तो वो चीजें धीरे धीरे डाउन हो जाएंगी। तो इसको पुनर्बलन को बनाए रखने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए कम से कम डेली 1-2 लोगों से आप बता दिया करो कि वहां पर ऐसा चल रहा है, प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, चीजें ठीक मिल रही हैं, आपको 6 महीने लगातार मेंटेन रखना है अपने आप को, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप बिहार की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो बेशक जो है आप बिहार का क्लास कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो है फोकस्ड यूपी पे ही है, और यूपी को ही वरीयता देते हैं, और यूपी में ही जॉब चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट को हम फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो यूपी स्पेशल के हैं तो वो लोग हमारे साथ बराबर जुड़े रह सकते हैं। और आप में से जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे तो कतई ये उम्मीद नहीं रहती है कि एक दिन जुड़े एक दिन न जुड़े, फिर वो चीज तो प्राइमरी के बच्चों की तरह नहीं ठीक लगेगी, तो हम भी अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे और आप भी अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। अगर दोनों लोगों का लक्ष्य एक ही है कि आने वाले एग्जाम में 110 पार कर लेना है, तो लगातार जुड़े रहना है, कछुए की तरह तो चलते रहना है। 3-4 महीने लगातार अगर काम कर लिए तो फिर जो है सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। जी समझ रहे हैं? यस सर, यस समझ रहे हैं सर, मेरी बात को? जी सर, जी सर। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।
स्क्रीन दिखने लगी हमारी आप लोगों को? नो सर, अरे अब दिख गई सर, नहीं दिखी अभी? दिख गई सर, दिख गई। चलिए, बाकायदा मैं फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एक मास्टर और स्टूडेंट वाला नहीं। हम चाह रहे हैं कि डिस्कशन से मतलब ऐसा एक समुद्र मंथन हो इस ज्ञान का, तो बहुत ही मतलब ज्ञान का अच्छा सा अमृत निकले और सबका लाभ मिले। तो जिस भी साथी के दिमाग में कोई अपना विचार आए तो माइक ऑन करके बता सकता है, कह सकता है, पब्लिकली कह सकता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोचिंग नहीं जुड़े हैं आप किसी कोचिंग से, और जो कि वहां पर मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, आपको मना किया गया है बोलिए नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना सुनिए, और ज्यादा आप बोलेंगे तो फिर कोचिंग से हम निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर मास्टर जी का मॉरल डाउन हो जाता है। जैसे सपोज दैट आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मास्टर जी को नहीं पता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, 8,000 का मैटर फंस जाता है, 2 4 अगर प्रभावित होकर निकल गए तो मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अगर मुझे नहीं आता है क्वेश्चन, तो मुझे कोई गिलान इसलिए नहीं होगी कि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ। दूसरी चीज ये कि है, अगर मुझे नहीं पता है तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं किसी को पता होगा तो कोई बता देगा आपको। तीसरा ही बात एक ये है, अगर किसी को भी नहीं पता है तो अगले दिन मैं ढूंढ के आपको जरूर बताऊंगा। तो 2 3 चीजें हैं, तो लगातार बिल्कुल ओपन हो करके लिबर्टी में, नॉट फ्रीडम, लिबर्टी में रह करके हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम ही तैयारी जोन। आइए इस जोन में और लोगों को लेकर के आइए हमारे इस जोन में, ठीक है? हाँ जवाब देते रहिए, तो गड़बड़ा जाएगा हमारा दिमाग। थैंक यू। 12 तक कर लिए थे, 13वां जो है करना है आज हम लोगों को। क्या है मैं देख लिया जाए। फादर सेड टू मी आर यू, हेल्पिंग वर्ड से है, तुरंत पकड़ेंगे कि इफ लगाना है। क्वेश्चन मार्क है तो आस्क लगा दिया, आस्क लगा दिया, इफ लगा दिया, इतना तो काम हो गया। डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, D4 बहुत सही। D4 यू को किसके अनुसार बदल दिया? मी के अनुसार, के अकॉर्डिंग, के अनुसार। आर बदल गया, पास्ट में गया, वाज हो गया, है ना, सेट हो गया आस्ट में, यहाँ लगा दिया इफ। स्ट्रक्चर भी थोड़ा दिमाग में चीजों को करते चलिए ताकि चीजें रिवाइज होती है ना, ताकि जानते तो सब लोग नहीं। मिस्टर गुप्ता सेड टू मी व्हाई आर दीज वाइड स्टैंडिंग, वाइड से चालू है, इफ नहीं लगाएंगे तो जानते भी होते तो सर सिलेक्शन हो चुका होता। नहीं, बात ये नहीं है, देखो सिलेक्शन ना होने हो पाने के रीजन सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं होती। आपने एलटी में पढ़ा होगा एमिली डिकिंसन को, सक्सेस काउंटेस फ्यूचर से, तो वहां पर जो चीजें पढ़ाई के दौरान आप सीखते हैं, जो ज्ञान आप लेते हैं, वो अगर आप एग्जाम में नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो सफलता नहीं मिली। अब जो सफल नहीं हुआ है, अगर उसको हम ये मान लें कि उसको ज्ञान की कमी है। इलाहाबाद में मेरे मित्र हैं एक, वो कई बार जो है, मैं जिस कोचिंग से जुड़ा रहा, ऑफलाइन भी हम वहां जुड़े रहे, तो कई बार बैठे, हालांकि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में था, तो वो कई अटेम्प्ट कर चुके हैं, और कोचिंग में उनका बड़ा टॉप नाम रहता। जब लो टेस्ट होता बड़ा बहुत पहले नंबर पे जाते हो, दूसरे तीसरे से ज्यादा कभी नहीं गए हो किसी भी टेस्ट में, और कोई क्वेश्चन उनसे पूछो जवाब तुरंत। मेरे एक साथी यहाँ पे बड़े साथी मेरे साथ में आते थे पढ़ाने, संस्कृत के टीचर थे। संस्कृत में कहीं से कोई भी बंदा कंपटीशन, उनके पढ़ाए हुए बंदे जीआईसी में सेलेक्ट, और वो साहब सिलेक्शन नहीं ले पाए। कारण क्या है? कारण एक ये है कि जो आपका प्राप्त ज्ञान है, वो प्राप्त ज्ञान जो है आप अपने OMR पर नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और नंबर्स में ना कन्वर्ट कर पाने के पीछे कई रीजन होते हैं। आपने देखा होगा कि कई साथी ऐसे जो आपसे कमजोर हैं, आपसे पढ़ने में कमजोर हैं, और वो सिलेक्शन ले लिए, आपको लगता है कि पैसा देके हो गए क्या, ऐसे घूस दिया होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने देते हो या होता हो सिस्टम, मैं नहीं कह सकता उस विषय में, लेकिन कई साथी ऐसे हैं जो कम पढ़ करके पास हो गए और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले नहीं पास हुए। उसके पीछे और भी तमाम कारण है। मनोदैहिक रूप से अपने आप को तैयार करना परीक्षा के लिए सबसे बड़ी बात है। परीक्षा हाल में जो है साइकोलॉजिकली अपने आप को एडजस्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है
चीजों को पुनः स्मरण, आपने बीए में पढ़ा होगा, पुनः स्मरण, ये अगर आपका नहीं हो पाया तो चीजें, आप चाहे इतने बड़े ज्ञानी हो, हाल से निकलोगे गेट पर, तब यार ये क्या गलत लगा क्या, ये तो मुझे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। होता कि नहीं होता? किसी के साथ हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? होता है। तो ऐसी स्थिति से अगर बचना है तो उसका एक ही तरीका है, बार बार चीजों को रिकॉल करना। और रिकॉल कब करेंगे? रिकॉल करेंगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस, रिकॉल होगा सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी भी कोचिंग में आप जुड़े होंगे, जो भी साथी जिस भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, एक फीचर आप देखेंगे उस कोचिंग का, वो रुपया आपसे 10,000 ले, 8,000, 15,000 जितना भी लेते हैं, उसमें वो आपका जो कोर्स पूरा कराते हैं, वो आपको कोर्स पूरा कराते हैं। और कुछ जो है 1-2 टेस्ट दे देंगे, टॉपिक वाइज दे देंगे, और 2-3 टेस्ट आपको वो करा देंगे। फिर इसके बाद पैसा आधा, पैसा खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म, मामला हो जाता है। यही होता है लगभग कोचिंगों का। और फिर उनका दूसरा बैच चालू हो जाता है, फिर से पढ़ाई चालू हो जाती है। तो पढ़ने से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करने से चीजें दिमाग में स्थायी होती हैं। और ये चीज आपको भी पता है और हमको भी पता है, सबको पता है, फिर भी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। आज हमारे साथ पेड ग्रुप में जो प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, अभी जो पिछला टेस्ट हुआ 125 क्वेश्चन का हमने मॉडल टेस्ट दिया था ओपन टेस्ट में। जिन साथियों ने जो है दिया था टेस्ट, ओपन क्लासरूम पे ही था, आप देखे होंगे कि एक साथी का हमारा 124 आया। 3-4 लोगों को ऊपर के जो रहे, लगभग वो 115 से ऊपर के रहे। और जिसका भी जो रैंकिंग रही है वो 80 तक के नहीं पहुंच पाए हैं। वो साथी सब बहुत पढ़ने वाले हैं। हम उनको व्यक्तिगत तौर पर कुछ साथियों को जानते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन 80 नंबर नहीं ला पाए। और एक साथी 124 नंबर लाया है। वो लगातार क्यों लेके आया नंबर? क्योंकि लगातार पिछले हमारे साथ 10 माह से जुड़ा हुआ है। 10 माह से प्रैक्टिस सिर्फ लगा रहा है। 10 माह से करीब में कम से कम हम लोग 17 से 18,000 की क्वेश्चन की सीरीज रटवा डाले हैं लोगों। ये 125 क्वेश्चन दिए, 124 नंबर लेके आ गया बंदा। तो प्रैक्टिस अगर हो जाती है हमारी अच्छी, तो चीजें रिकॉल हो पाती है हमारे। और रिकॉल अगर हो गई अगर आपके अच्छे से दिमाग में, तो एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। अगला है, मिस्टर गुप्ता सेड टू मी, व्हाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन? इसमें क्या होगा? मिस्टर गुप्ता आस्क्ड, व्हाई है तो व्हाई ही रखेंगे, दीज का दोज कर देंगे, आर का वर कर देंगे। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही। द शॉपकीपर आस्क्ड मी, शॉपकीपर आस्क्ड मी, वेयर से है, वेयर को वेयर ही रखेंगे, वेयर इज योर कार, योर को शॉपकीपर के हिसाब से बदल देंगे। हाँ, वेयर कार, माई कार, योर को मी कार। सही ऑप्शन है, सही बात है, बहुत सही, बहुत सही। आई आस्क्ड द शॉपकीपर, दूसरा हो, एक ही हो गया क्या ये? अच्छा, अलग अलग है। आई आस्क्ड द शॉपकीपर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक? आस्क्ड कर दिया, आस्क्ड ही हो गया। व्हाट है तो व्हाट ही रख दिया। आप प्राइस को सब्जेक्ट बना दिया, इसको वाज में कर दिया। ऑब्जेक्ट है नहीं तो वाज जाएगा, वाज बाद में। दैट वाज दिस, क्या दिस प्राइस का हो जाए? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा ना आपके पास। व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज, ए ऑप्शन। अगला, मिस्टर पुरी सेड टू मी, व्हाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस? टेकिंग डाउन दिस फेंस, पुरी ने आस्क किया है, वाई है तो वाई ही रखेंगे। सी वाला सर होगा। आस्क्ड व्हाई आई वाज टेकिंग डाउन दैट फेंस, सही बात है, यस, सी ऑप्शन हो जाएगा। द फार्मर सेड टू द फार्मर, फार्मर सेड टू द फार्मर, कैन यू हेल्पिंग वर्ड से तुरंत पकड़ेंगे हम ऑप्शन, या फिर इसके होगा क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन में बिना इसके भी आपको मिल सकता है ना।
द फार्मर आस्ट हो जाएगा, या इंक्वायर, इंक्वायरी कर रहा है तो इंक्वायर कर देंगे। इसका इंक्वायर तो है नहीं इसमें, डिस्क्लेमर सजेस्टेड है। ये ले देखो इसमें होगा फार्मर टोल्ड, टोल्ड विद इंक्वायर, इंक्वायर है एक ही है, तो आप क्लिक भी पकड़ सकते हो, इंक्वायर का है तो एक ही मिल रहा है तो यही सही होगा। फिर भी देख लीजिए इंक्वायर ऑफ द फार्मर इफ लगा है, he could tell him the way the nearest hotel, सही है, डी होगा। The lion asked to Linus, asked the Linus, Linus से कहा where will you बदल लेंगे सी के अकॉर्डिंग, हो जाएगा लाइनस के अकॉर्डिंग, हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी would hide, will का would hide herself until he returns, ये ऑप्शन बहुत सही है। A. Ravi asked Ritu, how many sets of class 12 practice papers have you finished? Ravi asked Ritu, कामा है लेकिन है ऋतु ही करना, ऋतु ही पड़ेगा। हाउ से शुरू है, WH नहीं है, आस्ट ऋतु कौन सा होगा? रवि आस्ट ऋतु, हाउ मेनी, हाउ आएगा साथ में अपने चिपकाया रहेगा वो। हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास प्रैक्टिस पेपर शी हैड फिनिश्ड, शी हैव का शी हैड फिनिश्ड हो जाएगा, यू हैव की जगह शी हैड हो जाएगा, ये आप समझ जाएगा। Yes, sir, A option. बहुत सही। कीर्ति आस्ट मी इफ, अच्छा ये इनडायरेक्ट ये है, करेक्ट बनाना है। आस्ट मी है तो इसको जो है सारा कुछ ताश से ही उन्होंने बनाया, तो आस्ट ही रखेंगे आस्ट मी। इफ है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से है, हैड वास्ट है परफेक्ट, इसका मतलब पास्ट में जाएगी है, पास्ट की वर्ब क्या हो जाएगी? डिड, पास्ट की वर्ब हो ये जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सर, डिड यू वॉच द मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? हाँ Sir, हाँ, C. ये दीवार का मूवी सी आता, डी नहीं सी होगा। Sir, C for cat. सी फॉर कैट। Shanti asked me, why did you keep this smartphone in the bin? Shanti asked me, why है, why को why रखेंगे, did है तो इसको परफेक्ट में जाएगा ये। डी ऑप्शन हो जाएगा सर, व्हाई आई हैड केप्ट द स्मार्टफोन इन द बिन। बहुत सही, डी ऑप्शन हो जाएगा, आई हैड। रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर, वेयर है तो वेयर को वेयर ही रखेंगे भाई। वेयर यू को ही ब्रदर के अकॉर्डिंग ही बदल देंगे। आज का वाज हो जाएगा सब लोग। रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर वेयर ही वाज गोइंग टू प्ले। ठीक है। सीता आस्क्ड हिज मदर, हैज इट बीन मूविंग ऑल नाइट, वर्ब से है, इफ लगा देंगे, आस्क्ड तो है ही है इधर। ऑप्शन होगा सर, बी हो गया। सीता asked his mother if it had been snowing all night. If Sir, B. it had, जी, B for ball. B for ball, it had been, had been snowing all night. had been, had को had में कर दिया। The child asked his mother if he could swim in the pool. इसको डायरेक्ट बनाना है, आज को तो आज ही कर देंगे, हो जाएगा बदल सर। सकते हैं। सी हो जाएगा इसका। The child asked to his mother, can he swim in the pool there? सी हो जाएगा, सही बात, C. सी हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा सही है। क्या तो चाइल्ड आस्क्ड टू हिज मदर, देखिए इसमें कैन तो है, कैन का स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन माता से जो है वो परमिशन लेगा, माता से, ये दिया हुआ है। B हो जाएगा।
बी जाएगा। फिर यहाँ पे मैं देयर ऐसे है, नहीं हुआ यहाँ पे। हम्म सी में देयर ही है ना, तो यहाँ पे हेयर होना चाहिए था। सर होगा तो वो यहाँ पर देयर की जगह हेयर हो जाएगा, लेकिन सर सी ही बी है, होना बी। चाहिए ना। सी क्यों, बच्चा पूछ रहा है ना अपने लिए। ये नहीं हो पाएगा। देर का देर कैसे, देर का तो हेयर कर देंगे ना, निर्णय डिस्टेंस वाले को निर्णय में बदलेंगे नहीं, देर को हेयर करेंगे मैडम, यस सर, समझ रहे हैं। यस सर। तो बी वाला है। यहाँ पर ये सर फिर मे का तो हम माइट करेंगे ना, कुड कैसे कर सकते हैं? हो जाता है किसी कहाँ कुड कर, नहीं मे का माइट, यहाँ पर माइट होता तब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ माइट होता, ये कह रहे हैं। जी जी। तो वहां से ना सोचिए, वहां उसने जो भी दिया है वो तो पास्ट का ही दिया है स्ट्रक्चर ना, आपको प्रेजेंट में लेके आना है, और प्रेजेंट में कैन और में दोनों मिलते हैं। तो कैन एक नॉर्मल परमिशन होता है, और जब हम ये इसकी वो किसी बड़े से परमिशन लेते हैं तो हम में का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर फ्रेंड होता मदर की जगह पर तो कैन वाला सही होता, वो कैन वाला सही होता, लेकिन तब भी यहाँ पर देर वाली प्रॉब्लम थी, यही सही होगा, बी ही। समझ रहे हैं जी। ओके। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक के यहीं पे वाइंड अप होता है। सभी साथियों का आभार, मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू। Thank you, थैंक यू sir. सो मच।